going to start with the unit 10. This is our fourth class. Already we have covered in 9 units in previous 3 classes, and yesterday's class we had our discussion. I want to refresh your memory. The non-cooperation movement and the Khilafat movement of 1920s. Then we find out the suspension. जो असहयोग आंदोलन immediately it was suspended due to the violent incident caused by the mob by burning the police station at Chauri Chaura. ତେଣୁ ଚୌରି ଚୌରା ଥାନା ପୋଡ଼ି ପରେ ପରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ଅଧା ବାଟରୁ it was stopped by the architect of the movement, Mahatma Gandhi. Then we find out that the rest period 1922 to 1930 এই যে 8 ବର୍ଷ সময়টা they Gandhi I had told you in the previous class how Gandhi engaged himself in ashram culture. So we find out in various parts of India जो passive resistance जो Gandhian mode of passive resistance ashram रे सब रहिबो and you will carry on the constructive works. सेटा गोटे आउ गोटे फेज तेणु विभिन्न जगह गांधीकर आश्रम है सेठी केमिति चरखारे लुगा बुनब केमिति ग्राम रे लोक मानकु शिक्षित करैब यू विल टीच देम अबाउट क्लीनलीनेस तापर विलेज तमरा आनिबो कोन सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरशील लोक मानकु करैबा पई महु चाष शिखा जाउतला लुगा बुना शिखा जाउतला सैनिटरी एजुकेशन दिया जाउतला ए नंबर ऑफ थिंग्स वर डन. And you know, when Simon Commission visited India in 1928, because there was no inclusion of an Indian, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ବି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନଥିବାରୁ the disgusted members of Indian National Congress, they boycotted Simon Commission, and I told you that this boycott of Simon Commission, naturally, it created a very resistant mood among the न्यासनालीस्ट जे ताका भितर गोटे प्रतिरोध आनिला जो कांग्रेस मानक भितर 1929 मसीह रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस रे गृहीत है जनवरी 26 को से माने स्वाधीनता दिवस हिसाब रे राबी नदी कूल रे पास करथिले किंतु तथापि मध्य द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव डोमिनियन स्टेटस. एक्सक्यूज मी 1930 मसीह रे Gandhi now took up the task of breaking the law जोटा को हम कहूँ civil disobedience movement. कौन आइन भंग कले ना लवण आइन. I had discussed in details. आमे गत क्लास रे या भितर डिस्कशन करि सारछु and it continued from 1930 to 1934. तारि भितर आमे देखुछु तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतिला गोल टेबल बैठक out of which Congress was the representative of the Congress was present in second round table conference held at London. तापर कोन हला the civil disobedience movement was suspended in 1934. तापर आमे माने देखुछु the revolutionaries आउ गोटे फेज ए समय रे आमे देखुछु भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जो मानन को आमे कहूछु जे गोटे बहुत विप्लवी मानकर आविर्भाव ए समय रे घटितला जो माने कि चाहुथिले जे उग्र जातीयतावाद माध्यम रे हमर गांधी के परि परोक्ष रे बा शांतिपूर्ण उपाय रे नकरी आमे इमीडिएट एक्शन से माने हमको जेमिति व्यवहार करजंती हमको जेमिति शोषण करजंती वी मस्ट गो अगेंस्ट देम. तेणु वर्तमान कौन है ना वर्तमान आम देखु जे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस इट केम इनटू एक्जिस्टेंस और प्रथम होता तुम द घड्डर पार्टी 1913 रे अमेरिका रे जो होता नाला हरदयाल से जो बैकग्राउंड मु कहि घड्डर पार्टी एवं ये जो घड्डर पार्टी दे कैरिड ऑन resistance against the British authority outside India. तेणु भारत बाहर जदियो यार हेडक्वार्टर थिला अमेरिका रे किंतु मालेशिया फिलिपाइंस सिंगापुर इंडोनेशिया एई जो अंचल गुडिकर भारतीय माने थिले सेमानकु नेई सीथि अंतर्भुक्त करी वर्तमान हमने कोन देखुछु ना आरंभ हला गदर पार्टी एवं they had achieved a lot in arousing the national sentiment.
तापर आम मैंने आसुचु कौन ना तापर आम मैंने देखुचु द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो योगेश चंद्र चटर्जी सुखदेव भगवती चरण भोरा ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ 1924 ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା କାକରି ରବରୀ। ତେଣୁ କାକରି ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଉମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ନା 4 ଜଣ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ଆସଫୁଲ୍ଲା ଖାଁ, ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ, ରୋଶନ ସିଂ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ଲାହିଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ତୁମର କଳାପାଣି ମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଟା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଇଛି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାବ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସୁନଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଥିଲା କଳାପାଣି। ତେଣୁ ସେଇ କଳାପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ହେଇଛି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ୟାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏଠି ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କର କାରାବାସ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ କବିତା କେତେ ବିପ୍ଳବ କେତେ ଶହୀଦଙ୍କ ରକ୍ତେ ରଞ୍ଜିତ ଆମ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ତାନ ଭରା ଇତିହାସ ଗାଥା କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ କାହାଣୀ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ଇତିହାସ ଏକ ବିରାଟ ମହୀରୁହ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର ମିଳେ। ବରଗଛ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଯେମିତି ବିରାଟ ବିରାଟ ଓହଳ ହେଇ ମାଟିରେ ପଶି ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ମହୀରୁହ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ। ଇତିହାସ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି କେତେ ଶହୀଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦେବାର କାହାଣୀ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର କାହାଣୀ କେତେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ କେତେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଗାଥା ଏସବୁ ଇତିହାସ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏସବୁ ସେଠି ଅଛି ସବୁ ହିଁ ଇତିହାସ ତାର ନିଜ ବୁକୁରେ ଧରି ରଖିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1924 ପରେ ତାଙ୍କର ଫାଶୀ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା 1925ରେ କାକରି ଇଏ ହେଇଥିଲା ରବରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଲା ପରେ ଫାଶୀ ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ତା ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା 1928ରେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଡାଇନାମିକ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତା ନାଁ କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଭଗତ ସିଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଭଗବତୀ ଚରଣ ଭୋରା ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଇଏରେ ତାପରେ ସେମାନେ ସଣ୍ଡେରଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତମେ ସେସବୁ ଇତିହାସ ଜାଣିଛ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ 1920ରୁ 30 ଭିତରେ ବହୁ ବିପ୍ଳବୀ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂଗ୍ରାମାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସର ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲା ବେଙ୍ଗଲ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯୁଗାନ୍ତର ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଆର୍ମରୀ ରେଡ୍ 1920ରେ ମାଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ଯିଏକି ସେ ତାଙ୍କର କେମିତି କରିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ତାର ଘଟଣା ଆମେ କାଲି ସବୁ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେୟାର ୱାଜ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ। ତେଣୁ ଏଟା ଥିଲା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବା ବୈପ୍ଳବିକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ପଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 10 ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ଯେ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ
इंग्रेज माने शासन आरंभ कले नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कले 1757 मसीह पलासी युद्ध रे तापर 1765 बेलू जिते बंग बिहार ओडिशार दीवानी दीवानी माने राजस्व आदाय करने क्षमता लाभ कले मुगल सम्राट ठारू से दिन ठारू धीरे धीरे भारतर प्रशासन रे भारतर प्रशासनिक क्षेत्र में से आधिपत्य विस्तार करने को लगे तुम आम जो खजना बर्तमान दौचु राजस्व दौचु प्रति थर देख इवन तुम टाउन रे रोथि आम होल्डिंग टैक्स दौचु आम घर उपर आम होल्डिंग टैक्स सरकार को दौचु गाँव में जो मनकर जमी बाड़ी अच्छी आम तापर टैक्स दौचु से खजना बा लैंड टैक्स बर्तमान जो इंग्रेज मैंने आम आम सरकार को दौचु किंतु से इंग्रेज मैंने जो आदाय कले से भारतर भाग्य विधाता से अंचल जो ग्रांट ऑफ दीवानी जो मुगल सम्राट को पाइले बंग बिहार ओडिशार से राजस्व आदाय करेंगे से आस्ते आस्ते भारतर प्रशासनिक क्षेत्र में से आधिपत्य विस्तार कले मन रख प्रथम 100 वर्ष 1757 रु 1857 भारत राजत्व करुला भारत को शासन करुला किए ना गोटे घरोई कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तेणु ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे घरोई बॉडी गोटे प्राइवेट बॉडी से आसते वाणिज्य करने किंतु भारत में अनुकूल परिस्थिति देखी अनुकूल राजनैतिक परिस्थिति उत्साहित कला राजनैतिक क्षमता अधिकार करने को एवं से अधिकार कले भारत में शासन मूलदुआ देले प्रथम 100 वर्ष आरंभ करथिले बंगदेश प्रथम 100 वर्ष भितर विभिन्न उपाय भारतर बहु अंचल को से निज अधीन को आनिले परिस्थिति एपरी है जे विरुद्ध जो 1857 महान विप्लव है एवं तापरे 1857 जो बाकी 90 वर्षर शासन 1857 to 1947 इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन आउ घरोई कंपनी पाखे रहिला नहीं इंग्रेज रे मनकर जे महारानी थिले से क्वीन विक्टोरिया सी बाय ही प्रोक्लामेशन टुक ओवर द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी आउ कंपनी को शासन करने को दिगला नहीं वर्तमान भारत प्रत्यक्ष भाव में इंग्रेज सरकार द्वारा शासित है 1757 जो तुम आरंभ है शासन 1765 जिते से राजस्व आदाय क्षमता पाइले वर्तमान यही जो ऑफिसर माने भारत में रहिले से नियंत्रण करने जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्तमान सिटी से तुम पढ़ी द रेगुलेटिंग एक्ट द पिट्स इंडिया एक्ट विभिन्न प्रकार आईन पास होता ये सब आईन मुझे गुड़ा कहबी नहीं कारण तुमर जोटा अच्छी द इंडियन काउंसिल एक्ट एगुड़ा है केबे 1773 गोटे होता 1784 माने मोर कहवा कथा बहुत आईन पास है कौन पास है ना आईन पास है शासन को नियंत्रण रे रखिबा पई आईन प्रणयन दरकार तेणु जेकोसी जिनस को नियंत्रण में रखापी गोटे आईन प्रणयन दरकार तुमको वर्तमान भारत में जो कथा चली जो गोटे धर्षण केस जड़े लेडी डॉक्टर को ट्रेनिंग लेडी डॉक्टर को कलिकता है धर्षण है बेंगल गवर्नमेंट रे से पास कर संगे संगे गोटे आईन पास अपराजिता बिल आईन पास है बिल पास है कि आईन करवाक से वर्तमान पठा जाइए उपरोक्त मैंने ऊपर अधिकार मान राज्यपाल देखिए से ऊपर को जीव आईनटा पास है उदाहरण तार देवार अर्थ आईनटा पास है तुम नियंत्रण क्षमता आसब बिल हिसाब से जाए बिलटा जो पास हो जाए से आईन परिणत हुए एमाने वर्तमान जो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ये पास होता आम देखु विभिन्न पर्याय कौन होता ना जो तुम जो आसीगला 1858 तुम इंग्रेज जी राजा राणी तर शासन भारत शासन भार निज हाथ को देले से गोटे आईन पास करथिले जोटा को कहा जाए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 where it was categorically declared that henceforward the administration of India will be controlled by the British Queen
not by a private company like East India Company. ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା 1800 ତମର ଅଛି କୋର୍ସରେ ଯୋଉଟା ତମର ଅଛି ଯେ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1892, ଦ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ 1909, ତାପରେ ଆସୁଛି ତମର କ'ଣ ନା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ 1990, ଏଇଟା ହେଲା 1909, ଏଇଟା ହେଲା 1919, ତାପରେ ଆସିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ୍ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ି କିଛି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଆମେ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1892 ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1892 ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବିଧାନସଭାର କନସେପ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିରେ କେମିତି ହବ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ କିଛି ରହୁଥିଲେ, କିଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସେସବୁ ତମର ବିଭିନ୍ନ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମ କ'ଣ ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡି ବାଇ ଦ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆଗରୁ ତମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1853, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1861, ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଧାନସଭା ନେଇକି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡି ନେଇକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିଲା। 1892ରେ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଲା ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜେସ୍ in the composition of legislative body। ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡି ସବୁ ଅଛି ତାର କେମିତି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମସୂଚୀ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ମେନଲି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଲିବରାଲ ଏନାଫ୍, ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଲିବରାଲ ଦି ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ଡ ଏବଂ ସେଥିରେ ମେନଲି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତି ନଥିବାରୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ ସେଇ ଆକ୍ଟ ତ 1892ରେ ତାମାନେ କ'ଣ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ସେଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1905 ବେଳକୁ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଦାର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମତବାଦରେ ନେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ଚରମ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ 1906ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତମର ଆସିଥିଲା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ତ ହେଲା 1905ରେ, 1906ରେ ହେଲା ମୁସଲିମ ଲିଗ, ତେଣୁ ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ମର୍ଲେ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଦ ଭାଇସରୟ, ଦିହେଁ ମିଶି ଯେଉଁ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ମାନେ ମର୍ଲେ ଲର୍ଡ ମର୍ଲେ ଜଣଙ୍କ ନାମ, ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସେ ଭାରତ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଯିଏ ଅଧିକର୍ତ୍ତା ହେଇ ରହିବେ ସେ ହେବେ ଭାଇସରୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ମର୍ଲେ ଏବଂ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ମିଣ୍ଟୋ। ତେଣୁ ଦି ଜଣ ମିଶି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ବା ଏଠି ମନେ ରଖ ବା ଦ କ'ଣ ହବ ନା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ
1909 বা ମର୍ଲେମ୍ ଟୁ ରିଫର୍ମସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଖ ରିଫର୍ମସ୍ ମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର୍ସ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବଡିରେ ଯେଉଁ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ বা ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অফিসিয়াল মেম্বর রহবে কেতে জন বর্তমান আম বিধানসভার সব নির্বাচিত সদস্য যাচ্ছেন কিন্তু সেতবে যে সব লেজিসলেটিভ বডি লা বিধান পরিষদ বা বিধানসভা লা সেতরে আগ সরকারଙ୍କର নিজস্ব সদস্য রহবে গভর্নমেন্ট যে অফিসিয়াল মেম্বর্স তাপরে রহবে নন অফিসিয়াল মেম্বর্স এবং আউ কিছু রহবে মনোনীত সদস্য କିଛି ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ କିଛି ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ କିଛି ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଲେ ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସେଟା ପାସ୍ କରି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଗଲା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ସେମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଗଲା ये सीट दिगला मुस्लिम्स मानक दिगला एवं जो माने मुस्लिम लैंड होल्डर थिले के बेसी थिले तुम यूपी और बेंगल ले सेमा को दिगला आउ बॉम्बे और कलिकता पई तमर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एगुडी का मध्य तमर कोन करागला एस्टैब्लिश करागला एगुडा जेतबेले करागला आमे देखुछु कोन ना ए जो रिफॉर्म रो कौन उद्देश्य थिला ना टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश राज बा ब्रिटिश अथॉरिटी बाय रैलिंग द मॉडरेट्स माने आमे कौन करिबु ना जो माने मॉडरेट का आमे एमिति तुम मान को डाकिले ए एक्सट्रीमिस्ट माने बहुत उत्पात करूछंती हिंस्र मनोभाव नै जते एक्सट्रीम चरम पन्था ग्रहण करूछंती तेनु मॉडरेट मानन को आमे ब्रिटिश आम पाखु को आनिले ताको सहाय्य रे आमे शासन करि परिबु एंड टू एनकरेज division politically among the Hindus and the Muslims कहिछि जे मुसलमान जमीदार को पई स्पेशल सीट रहिला हिंदू जमीदार को पई जमीदार को पई रहिबो हिंदू को पई मुसलमान को पई अलग अलग हेले डिवीजन ता भलो हबो तापर कोन हला ना एथरु आसी जीवो कोन जे परवर्ती समय रे आसी जीवो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर the Muslims ए परवर्ती समय रे थोड़े कम्युनल अवार्ड आसी जीव 1932 बेलू जे वर्तमान आम देखु जमी आम भितर कौन से तो पार्टीशन जो पढ़ो पार्टीशन ऑफ इंडिया युवा सब स्टेट आ वर्तमान भी आमर ता भीतर डिवीजन रही तेणु आसला आमर कौन ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट द third in the category was Montego-Chelmsford Reforms Act ए जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट लॉर्ड मॉन्टेगू से हेले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ चेम्सफोर्ड हेले वाइसरॉय तेणु पुणी रिफॉर्म्स पुणी संस्कार आनिबा पई एटा को पुणी भी कहा जाय पारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एटा मने रख प्रथम विश्व युद्ध परे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होती 1914 रु सरी 1919 रे वर्तमान आसिला कौन ना शासन संस्कार तेणु शासन संस्कार किछि आनिबा पई काना सेतबेलकू हमर महात्मा गांधी आसी गलेनी एवं महात्मा गांधी जेतबेले आसी जाउचंती आमे माने कोन को देखुछु ना अनेक परिवर्तन असहयोग पई प्रस्तुति चलीछि तेणु एमाने वर्तमान कोन कले ना वर्तमान भारतीय मानक किसी सुविधा दवाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ले भारतीय सदस्य किसी भारतीय सदस्य को ग्रहण करिवार प्रस्ताव दिया गला द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर वर्तमान हमर बाइकैमरल बाई माने दुई बाइसाइकिल दुईटा चक वाला साइकिल बाइकैमरल माने लोकसभा राज्यसभा किंतु स्टेट रे यूनिकैमरलिज्म गोटे विधानसभा दुईटा विधानसभा नुहे तेणु बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन द सेंटर एवं द टू हाउसेस वेयर काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मन रख से स्टेट आसी नहीं तेणु स्टेट कथा भूली जाओ स्टेट पे काउंसिल थिला तेणु कौन है काउंसिल ऑफ स्टेट
आउ हला लेजिस्लेटिव असेंबली आउ पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ए जो विभिन्न प्रोविंस थिला सेथिरे कोन कला ना पार्शियल माने पूरा पूरी भाव नहीं किछि दायित्व दिया जाइथिला प्रादेशिक सरकार मानकू ए जो प्रादेशिक सरकार मानकू दिया जाइथिला जो 8टा प्रोविंस थिला माड्रास माने चेन्नई बॉम्बे माने मुंबई बेंगल यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब बिहार एंड ओडिशा 1919 बेले को गोटे प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस एंड आसाम सो बाय ए जो प्रोविजन गुडा एथरे 8टा प्रोविंस रे केमिति एप्लीकेबल हैला सेटा तुम माने देखुछो आमे तळे मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट देखुछु इट वाज नॉट वेरी हार्टिली एक्सेप्टेड कारण से माने अल्प अल्प आम मानकु जेतेबेले किछि दउचंती शासनर सुविधा सेटा देला बेलकु डिमांड आहुरी माने बहुत डिमांड कला पाउचंती सामान्य तेणु ए जो रिफॉर्म एक्ट आस्तिला सेटा मध्य ग्रहणीय हेई नथिला तेणु आमे माने देखुछु कोन ना इन द मीन टाइम जो घटना गुडी को घटिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हैला non-cooperation पुनी suspend हैला then we find out the visit of Simon Commission it was also not accepted civil disobedience movement आरंभ हैला तारी भितरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल टेबल बैठक हैला सेटा भी ग्रहणीय हैला नहीं तापरे आमे माने देखुछु कोन तीनटा गोल टेबल बैठक रु केवल गोटिए गोल टेबल बैठक रे कांग्रेस जाइथिले एवं 1932 बेलकू जो रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द प्रपोजल ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एठा आरंभ होची देखो से जो मुस्लिम लीग ए देखो केमिति सांप्रदायिकता सांप्रदायिक तिक्तता बढ़ी बढ़ी जाउची डिवाइड एंड रूल सो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नोन एज कम्युनल अवार्ड मु तुमको ए विषय रे कहिबी जते बेले हमें पार्टीशन ऑफ इंडिया बा ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में डिस्कशन करबा तमरो अछि वर्तमान कोन हैला ना 1935 रे गोटे एक्ट पास हैला आउरी गोटे शासन संस्कार हैला जोटा को कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एथरे कोन हैला ना प्रदेश मानकू किछि दिया गला सो ऑटोनॉमी तापरे कोन हैला बर्मा हे गला सेपरेटेड एई आगरु बर्मा जोटा वर्तमान म्यांमार एटा भारत सहित मिसी थिला म्यांमार वा सेपरेटेड सजेस्टिंग एवं आउ दुईटा प्रोविंस एक संग रे क्रिएट करबा को प्रपोजल दिया गला कोटा 1935 एक्ट अनुसार ओडिशा हैला सेपरेट प्रोविंस 1936 रे कार्यकारी होबा को समय लागिवो दीटा प्रोविंस एका साथी रे हेथिला सिंध and Odisha 1936 as per the provision of the Government of India Act 1935 एवं Burma was separated from India Burma चली गला separated from India तापरे कोन हैला ए जो बेंगल मद्रास यूनाइटेड प्रोविंस बिहार आसाम बॉम्बे एमान को दिया गला दुईटा विधानसभा तापरे कोन हैला जो वोटिंग अधिकार थिला द बेस वोट अधिकार दिया गला बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन वर्तमान हमर हैला यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सार्वजनीन भोट अधिकार तमरो कोटिए टंका अछि तमे भोट दे परिबो मोर 1000 टंका अछि मु भी से गोटे भोट देबी तमे भी कोनोसी प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन नहीं एमाने किंतु जीए सरकार को कर दोतला बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रे भोट से माने इंट्रोड्यूस करले तेणु 1935 गवर्नमेंट ऑफ मु तो खाली चुंबक रे कहि जाउची टच करी जाउची बिकॉज़ वी हैव टू कवर अदर टॉपिक्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन ट्रू प्रिंसिपल्स व्हाट हैला फेडरेशन एंड पार्लियामेंटरी सिस्टम the although the federation principle was introduced within a built in a unitary bias yet the province were invested with a coordinate not with a subordinate authority
ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ rejected the provisions and provisions of safeguard and repudiated the idea of transition। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଯେ ବାମପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନର କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ 1934 ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦଳ ଆସିଲେଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଡିକ୍ଟେଟର ବା ଏକଛତ୍ରାଧିପତି ଶାସକଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି ହିଟଲର ଆଉ ମୁସୋଲିନି। ହିଟଲର ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ, ମୁସୋଲିନି ଇନ୍ ଇଟାଲୀ। ତେଣୁ ହିଟଲର ଆଉ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥାଏ କାରଣ ହିଟଲର ଚାହୁଁଥିଲେ ଅନେକ କିଛି ଅକ୍ୟୁପାଇ କରିବାକୁ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ମ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ। ଛାଡ଼ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଆଉ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତମର 1935 ଓଡ଼ିଶା ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ଇଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1936 ବେଳକୁ ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ପରେ ପରେ ସେଠି ସବୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପାଇଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପାରଳାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ତାପରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କଲା ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ 1939 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଯୋଗଦାନ କରୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୋର କଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ପରୋକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଟା ତ ଦିନେ ଅଧକାର କଥା ନୁହଁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। 1940ରେ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ତମେ ସେଟା ଡିଟେଲ ପଢ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯେ ଅଲରେଡି ଇଂରେଜମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି, ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଇଟାଲୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆମେରିକା ଆସି ମିଶିଲା, ଏମାନେ ହେଲେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗୋଟେ 1940ରେ ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀଆନ ଟେକ୍ନିକର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭାବରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟି ୱାର୍ ସ୍ପିଚେସ୍ ଦେଲେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ ତା ଆଗରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠିକାର ଯିଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ କାରଣ ସରକାର ବିରୋଧରେ ତମେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ବେଶୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସେକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ତାପରେ ପରେ ତମର ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗାନ୍ଧୀ ମନୋନୀତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କରି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତମେମାନେ ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ତମେ ଯେ ଭାବୁଛ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଚୁପଚାପ ରହିବୁ ନା, ଆମେ ତମର ବିପଦ ବେଳରେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ এই যে ব্যক্তিগত ইন্ডিভিজুয়ালস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ଯେଉଁ ନାଁଟା ହେଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, we shall resort to
नॉन भायोलेंट मीन्स कौन आम भायोलेंस करूँ ना आम भाषण देवु जेल बरण करूँ लोक मैंने सचेतन हेबे जे कांग्रेस बा जो कांग्रेस जो नीति अवलंबन कर युद्ध विरोधी नीति सेटा समर्थन करने को आगे आसवे। तेणु आम मैंने देखुचु कौन ना आरंभ है तुम इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो आरंभ होता है इंग्रेज सरकार से समय 1941 बेलू से पठेले गोटे मिशन जोटा को कहा जाए क्रिप्स मिशन। सो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया 1941। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सी.भी. लॉरेंस एंड पी.भी. अलेक्जेंडर तीन जन को लेकिन आसिले एवं से माने आसिले जे भारतीय माने कौन प्रकार भारतीय मानक आम अंततः किसी देले सुविधा देले से माने हमको द्वितीय विश्वयुद्धर युद्ध नीति को से माने समालोचना न करी से माने समर्थन करेंगे। किंतु आम मैंने देखुचु कौन से जो प्रपोजल दिगला जे डोमिनियन स्टेटस विल बी ग्रांटेड तुम आम सहयोग कर युद्ध पर आम मैंने तुमको दबु कौन डोमिनियन स्टेटस गोटे आम अधिकर्ता रही मूलकर्ता रही तुम मान प्रशासनिक प्रादेशिक स्तर में आम मैंने तुम किसी स्वायत्त शासन देवु एवं आउ कौन करा द कंट्रोल ऑफ डिफेन्स कौन किंतु डिफेन्स आ सामरिक प्रतिरक्षा किंतु आम कंट्रोल करूँ इमिडिएटली आफ्टर द ब्रिटिश विल गोटे कौन कर ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी गोटे तुम संविधान करने तुम तो चाहूच स्वाधीनता कि तो समय लगे गोटे संविधान करने आम गोटे संगठन बा गोटे बॉडी बा गोटे ग्रुप गोटे गोष्ठी को आम तैयारी जो क्रिप्स से प्रस्ताव देले एटा किंतु कांग्रेस के बहुत लेट हो गलानी आम जो डोमिनियन स्टेटस 1930 रे मागुलु वर्तमान 1941 आम डोमिनियन स्टेटस चाहूना आम चाहू पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस। तेणु द प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज रिजेक्टेड जोटा को गांधी कहते द पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक जे जो बैंकटा फेल हो जाइए मोर टका पैसा बुड़ी जाइए मुझे गोटे चेक लिखिकी देले कौन हम कि नहीं बैंक तो फेल तापर चेक रा डेट भी चली गलानी तेणु गांधी एटा को क्रिटिसाइज करते जो क्रिप्स मिशन जो प्रपोजल टाकू द पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए फेलिंग बैंक किसी गोटे करा दरकार। तेणु कांग्रेस कौन कला ना फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एवं फेलियर हवा पर जापान सियाडू माड़ी आसुଥାଏ भारत आड़ जापान और इंडियन बॉर्डर को आसु जाउଥାଏ तापर आसीगला राइजिंग प्राइस और शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई युद्ध पाई खाद्याभाव और दरदाम वृद्धि एवं यही सब नहीं कांग्रेस डिसाइड कला जे गोटे समय आसी आम आउ गोटे आंदोलन आरंभ करवा मु या भीतर तुमको कही चली द बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। सो 1942 तुमर कौन है ना ऑन 8th of August वर्तमान कांग्रेस रा जो अधिवेशन बसी बॉम्बे रे सेठी वर्तमान पास हला कौन ना सेठी पास हला द रिजोल्यूशन फॉर क्विट इंडिया सेठी पास हला इन 1942 8th August AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पास्ड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जे वर्तमान क्विट इंडिया तापर ठारू 8 अगस्त रे पास हेची गांधी टोल्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया क्विट एंड लिव इंडिया इन गॉड्स हैंड एवं सब इंडियन मानकू से गोटे मंत्र देले हिज मेसेज वाज डू और डाई किछि देश पई कर नले देश पई मर तेणु कर बा मर भारत तुम मैंने छाड़ी की जाओ एटा भारतवासी इंग्रेज मान भारत छाड़ भारत तुम छाड़ी की जाओ। तेणु आहरी गोटे मोर कथा यहाँ अगस्ट 8 तारीख तुम जानिछ क्विट इंडिया भारत छाड़ विप्लव अन्य गोटे ना है इट इज कॉल्ड एज अगस्ट रिवोल्यूशन बिकॉज इट स्टार्टेड ऑन 9th of August। कांग्रेस रिजोल्यूशन पास कि नहीं द न्यूज रीच्ड द इंग्लिश
एडमिनिस्ट्रेटर इंग्रेज प्रशासक पाक खबर हो गला जे एआईसीसी पास करदेला भारत छाड़ आंदोलन आंदोलन प्रस्ताव 9 तारीख सकाळू जेतिकी तुंग नेता थिले सबु तुंग नेता को बांधिकी नहीं गले एवं नहीं कोठी रखीदेले से माने रखीदेले जो अहमदनगर फोर्ट जेल अहमदनगर फोर्ट भीतर से माने ताको सेटा को जेल करके तारी भीतर रखीदेले से नेहरू को पटेल को तार भीतर महताब भी थिले ओडिसा रो नेहरू पटेल महताब पट्टाभी सीतारामैया आसफ अली तमर ये कणती भूली जाउची मौलाना अबुल कलाम आजाद समस्ते सैयद मासूद समस्ते 12 जन गांधी नथिले गांधी को यारवाड़ा जेल को नहीं गले गांधी चली गले यारवाड़ा जेल को माने समस्ते तुंग नेता माने एवं जानी छे से माने केते दिन रहिले सेठी अगस्त 9 रु से माने द्वितीय विश्व युद्ध से थिला 1945 मसीह रे जेतोले जापान उपरे हिरोशिमा नागासाकी उपरे जेतोले बम पका गला ता माने सेटा केते अगस्त 6 अगस्त 9 3 वर्ष तापरे परे से माने खला जे जापान सरेंडर कला आत्मसमर्पण कला परे जापान मिसी जीव का संगे अक्षय शक्ति जर्मनी और इटाली संगे मिसी की सरेंडर कला से परे युद्ध शेष हला 3 वर्ष धरी से माने मग्नी रहिथिले कोठी ना से माने रहिले अहमदनगर फोर्ट जेल तमे मते प्रश्न पचारिबो गांधी नथिले नेता माने नथिले आंदोलन केमिति चलला एटा गोटे माने बड़ा कथा इट वाज ए मास मूवमेंट लोक माने एते भी तस्पृह हे जाइथिले इंग्लिश शासन प्रति एवं एमिति जातीयता भाव रे उत्तरण तांकर घटिथिला से माने चाहिले कोनोसी प्रकारे आमी आंदोलन रे शामिल होबु तेणु नेता माने नहांती किंतु आंदोलन आरंभ हला एवं ए जो आंदोलन जे भी धर ओडिसा रे नेता माने जे माने नेता थिले मेनली तमर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी और मालती चौधरी से माने लुचि गले से माने जो माने भी नेता माने न जाई परथिले समान समस्त अंडरग्राउंड चली गले जे लुचि के हमें रही कि लोक मान को नेतृत्व देबु जदि बाहर संगे संगे जेल वाला पिला लोक नेतृत्व तो दबार भी तो अछि ना तेणु अंडरग्राउंड एक्टिविटी तेणु आमे देखुछु कोन ना स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट वर्तमान स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट रे गवर्नमेंट लोक माने करूचंती इट वाज ए मास मूवमेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन एगुड़ा सबू को से माने कोन कले आक्रमण कले कटिंग ऑफ टेलीग्राफ लाइन टेलीफोन लाइन इलेक्ट्रिक पावर लाइन एगुड़ा को तार को कटा हला रोड सब ये कोन ट्रैफिक को ब्रिज को भांगी देले वर्क ऑन स्ट्राइक आउरी गोटे हला जे जातीय सरकार धर आम ओडिशा रे स्वयं हेथिला ताळीजीवी जो कोन हला ना वासुदेवपुर बोली गोटे जगह रे स्वाधीन बांछा निधि चकला स्वाधीन बांछा निधि चकला तमर महाराष्ट्र रे हेथिला कोन ना सातरा रे से माने कले कोन ना सातरा जातीय सरकार बेंगल रे हेथिला तमलुक जातीय सरकार एवं तमर जो मेनी पार्ट्स ऑफ यूपी बिहार रे जो आजमगढ़ बालिया गाजीपुर मुंगेर मुजफ्फरपुर सेठी सब कोन हला पुलिस स्टेशन ये कुछ माने ध्वंस सब कर देले मोर कहिबा कथा आ विशेष करी ओडिसा रे हम माने देखुछु कोन सेही समय रे जो रेडियो थिला कांग्रेस रेडियो सेइथरे जो आजाद हिंद ये जो वार्ता से माने सब देथिले कांग्रेस वार्ता सेथरे राममोहन जयप्रकाश राम नारायण रामनंदन मिश्र से माने हजारीबाग जेल 1922 रे जेल लेथिले खसी की पड़े आइले आसिकी कोन कले ना नेपाल पर्यंत जाकी सेठू चलेइले तापरे हला कोन ना अंडरग्राउंड रे अरुणा सफाली थिले तापरे उषा मेहता जे कांग्रेस रो अनाउंसर से भी थिले तेणु आमे माने देखुछु कोन आ विशेष करी आमे ओडिसा रे तुमको कहले बहुत घटना है जो इरम रे भद्रक जिल्ला रो वासुदेवपुर सब डिवीजन रो इरम रे 29 पुलिस फायरिंग रो 29 जन मरिथिले बहुत घटना अछि तमर भारत रो विभिन्न अंचल रे एवं हम माने देखुछु कोन ना रिप्रेशन भी चलिला तमर पुलिस तो माने जो तमर चलिला लाठी चार्ज चलिला इम्प्रिजनमेंट चलिला तमर चलिला कोन पुलिस फायरिंग चलिला सब गुडा रे आ अनेक जगह रे
एयर रु कौन है एयर ड्रपिंग है एरोप्लेन रु रही तौक से मारे कौ जगह ना तुम है गिरियाक पाटनार भागलपुर रानाघाट तापर आसला मुंगेर तालचेर तालचेर एते तुम भयंकर धारण करिथिला तुमर कौन ना तुम धारण कर ये जे तालचेर रे तुमर ये क्विट इंडिया मूवमेंट तुमर है कौन एयर गन तो एरोप्लेन माने तुमर एयर गनिंग है सेठू एरोप्लेन 6 जन मरी थिले आउ तुमर ए जो तुमर है तुमर क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज द very unique chapter माने गोटे लास्ट मूवमेंट लास्ट गांधीयन मूवमेंट एवं तापर परे द्वितीय विश्व युद्ध जेतेबेले सरिला विथ द सरेंडर ऑफ जापान हमर क्विट इंडिया मूवमेंट एवं तमर एठी हला इलेक्शन कोठी हला इलेक्शन तमर लंडन रे तांकर जो इंग्लैंड है कि तमर कंजर्वेटिव पार्टी जो चर्चिल कर फेलियर परे तांका पार्टी हारिला वर्तमान अटली आसिले एवं सी पठे करथिले कोन ना डिक्लेयर कले इंडिया विल बी ता सेति भाइसरय आसबे तांकर पथ सुगम हैला किंतु एटा आम एपर्यंत थिले गांधीयन मूवमेंट्स रे नॉन कोऑपरेशन कह द सिविल डिसोबीडियंस और इंडिविजुअल सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट यार गाइडिंग प्रिंसिपल्स वेर द गांधीयन आइडियोलॉजी next chapter in the history of Indian national movement was started from a different direction मु जेमति कहि खदर पार्टी से मैंने बाहर थाई करथिले सेमिति आमे जदि आजाद हिंद फौज कथा जदि उल्लेख न करिबा जो दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज बा इंडियन नेशनल आर्मी अंडर सुभाष बोस तेणु भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो अन्य एक दीप्तिमंत अध्याय हला तमरो कोन ना एटा गांधीयन मूवमेंट नु हम तुमको जोटा कहली सुभाष चंद्र बोस एंड हिज इंडियन नेशनल आर्मी जोटा को पॉपुलर बा भाषा रे साधारण लोक भाषा रे थिला आजाद हिंद फौज कौन हला आजाद हिंद फौज सुभाष बोस तो भारत रे थिले तमे तो जाना ही वाज बोर्न इन कटक 1799 रे 1899 रे से जो कटक रे जन्म होइतिले कटक रे शिक्षा पाइतिले तापर ताकर एक्चुअली तापर से गले बेंगल को कना हिस बापा इठी लॉ प्रैक्टिस करथिले तापर से माने चली गले बेंगल को सेठू से ही वाज ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस किंतु धीरे धीरे जेतेबेले गांधी सस्पेंड कर देले चोरी चोरा मूवमेंट आईसीएस पाइथिले आईसीएस छाड़ी देले किंतु चोरी चोरा मूवमेंट पर जेतेबेले गोटे ग्रुप विरक्त हो गले सेतेबेले से सीआर दास चित्तरंजन दास का स्वराज पार्टी रे मिसिले छाड़ से सब कथा किंतु हमर वर्तमान कोन होची ना धीरे धीरे से जो तापर 1935 बेलू से निजे गोटे पार्टी करेंगे फरवर्ड ब्लॉक वर्तमान भी बेंगल फरवर्ड ब्लॉक अच्छी फरवर्ड ब्लॉक पार्टी कले किंतु तांकर जो गांधीयन आइडियोलॉजी रे तांकर माने भरोसा रहिला नहीं जेहेतु तांकर भरोसा रहिला नहीं तेणु सी वर्तमान कौन कले ना ब्रिटिश से वर्तमान आरंभ कले बाहर रही तमे गोटे सिनेमा मु तो सब बेले कहबी देखिया को सुभाष बोस द फॉरगॉटन हीरो सी वर्तमान चाहिए कौन नेताजी अराइवल इन ईस्ट एशिया द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज तेणु आजाद हिंद फौज को से प्रथम कथा है गठन करा कौन गठन केमती करा ना प्रथम आसिला कौन ना आमे देखुछु जे आजाद हिंद फौज को केमिति से गठन करिवे आजाद हिंद तमर प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होइतिला 1914-15 पर से समय रे प्रथम विश्व युद्ध जेते बेले आरंभ हला से समय रे फाउंडेशन टा केमिति दिया जाइतिला ना बहुत गुडिए इंडियन पॉपुलेशन रु तमर रही जाइतिले कोन ना जो जापानीज फोर्स भितरे द टोटल इंडियन पॉपुलेशन प्राय 20 लाख लोक बर्मा मालय थाईलैंड इंडोनेशिया हांगकांग इंडो चाइना
एमाने अंचल तुम प्राय 20 लाख खंडे भारतीय थिले एवं ए जो 20 लाख भारतीय थिले से माने कौन करते ना भारत बाहर रही किंतु देश में जो स्वाधीनता संग्राम से गुड़ा सब चलुचंती एवं तांको भितरु जने थिले रासबिहारी बोस एवं से रासबिहारी बोस प्रथम अवस्था भारत में थिले तापर से चली गले से जो ईस्ट एशिया को एवं सेठी जाई कि से गोटे फौज गठन करथिले से जो फौज गठन करथिले से जो फौज गठन रु से तापर कौन हला ना आमे देखुचु कौन जे सुभाष बोस जेतबेले जाई सेठी पहुंचले ही नाउ कॉन्टैक्टेड हिम एवं तांकर सी चाहूचंती गोटे इंडियन आर्मी गठन करने को तेणु ज्ञानी प्रीतम सिंह कैप्टेन मोहन सिंह तापर आसिले कौन ना प्रीतम सिंह मोहन सिंह ए जो ए मीटिंग विथ द वेटरन रिवोल्यूशनरी रासबिहारी बोस वाज अरेस्ट इन जापान तेणु प्रीतम सिंह सत्यानंद पुरी एमाने कौन कले ना बैंकॉक रु ये गले अन्य माने सब गले मीटिंग हला एवं टोक्यो रे माने रखे एटा सब जापान रो सहाय्य रे होची द जापानीज वेर इन टच विथ सुभाष बोस से सेतबेले बर्लिन रे थांती जेतेबेले आरंभ हला द्वितीय विश्व युद्ध ता परवर्ती समय रे जापान जोग देला कहा पट जोग देला जापान जोग देला जर्मनी आ इटाली पक्ष रे एवं सुभाष बोस तमे देखिबो सेठी गृहबंदी है कि भारत रे थिले केमिति से जो सुभाष तो फॉरगॉटन हिरो तमे टोटल आईडिया टा पाई जीवो से सेठु केमिति लुचि की पळेइले एवं जाई की काबुल बाट देई से जाई की केमिति गोटे सबमरीन ये रे जाई की पहुंचले कोठी ना एठी तमरो जर्मनी रे एवं जर्मनी रे पहुंचला बरे से तबले जापान तो हे जाई थे जर्मनी रो बंधु तेणु बर्लिन रो पहुंच की ही वाज इन टच विथ जापान एवं सेठी कौन हला ना से माने जापान एग्री कला जे तमे आठी के आस मैं तुमको सहाय्य करिवु तेणु बाय एंड ऑफ अगस्त हम देखुछु कौन ना क्विट इंडिया मूवमेंट भारत रे चली था बाय एंड ऑफ अगस्त हम देखि दउछु जे 10th कौन हला द फर्स्ट आईएनए डिवीजन जो 16,300 लोकों को से जोगाड़ करथिले केते बेलको 1942 बेलको एवं से जो हला जो तमर आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंद फौज आजाद माने मुक्ति करबा हिंद को मुक्ति करबा ए फौज सेतरे जो सब विभिन्न विभाग रखा गला सेतरे गोटे झियो मानक विभाग रखा गइथला सेतरे 100,000 जन लेडी थिले रानी झांसी रेजिमेंट जार हेड थिले लक्ष्मी स्वामीनाथन तमिल ओमेन वाज द कमांडर एहा छड़ा मध्य अन्य रेजिमेंट रो ताकर सब ना देथिले गांधी रेजिमेंट आजाद ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड निजे सुभाष बोस मध्य तांका नारे करथिले सुभाष बोस ब्रिगेड ता माने तमन हमर जेंति आर्मी रे अछि कोन तमरा विभिन्न रेजिमेंट अच्छी तमर कौन बेंगल रेजिमेंट नेपाल रेजिमेंट जे&के रेजिमेंट अनेक रेजिमेंट अच्छी सेमिति से कौन कले ना विभिन्न रेजिमेंट करके आजाद हिंद फौज उद्देश्य कौन आ जो कहूची तमे जानिछ दिल्ली चलो लक्ष्य हला दिल्ली चलो एवं तापर हला कौन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम तेणु से माने आसिले को बाट देकी ना बर्मा बाट दे जापानी सहायता रे खाली तो तुम सैन्य माने हेबिनी एथि पैसा पत्र खाद्य पेय जापान सहायता कला का तुम कह जापान लक्ष्य कौन ना भारत को प्रवेश करी इंग्रेज शासन पतन यदि भारत रे घटी जाए ओबियसली यूरोप रे तमर इंग्रेज मानकर पतन घटिबो तेणु जेहेतु भारत इंग्रेज शासन अधीन रे थिला तेणु इंग्रेज शासन पतन पाई से माने सहाय्य करने को राजी हेले सुभाष बोस तेणु सेठु आरंभ है आमर कौन भारत उत्तर पूर्व पाखरु से माने प्रवेश करने को आरंभ कले एवं कोहिमा इम्फाल एक्सपेडिशन कोहिमा नागालैंड रो इम्फाल मणिपुर रो सेठी से माने केमिति कले ये गोटे कहानी सेपरेट चैप्टर सेतबेले भारत भीतर तमर चली कौन ना भारत छाड़ आंदोलन चली नेता माने समस्ते जेल रे सुभाष बोस आसुचंती एवं कोहिमा इम्फाल एक्सपेडिशन पर से माने सेलुलर जेल कलापानी अंडमान को जाइथिले
किंतु तुम सबू कहानी जानिच जे से माने अंडमान को जाइथिले सेठी मध्ये जाइथिले तापर से समय गोटे आजाद हिंद रेडियो से तो टेलीफोन रेडियो रे सब अनाउंस करा जातला आजाद हिंद रेडियो तापर ऑन द बैंक ऑफ इरावदी 1950 ये बेलकू 45 बेलकू आम देखुचु कौन ना से माने अनेक किछि करि आस्थिले भी जापान जेहेतु सरेंडर कला जापान कहीं ये गला हिरोशिमा नागासाकी उपरे अमेरिका बम पकेइला हिरोशिमा नागासाकी उपरे अमेरिका जेतबेले बम पकेइला नेचुरली जापान हैड टू सरेंडर जापान सरेंडर कला बेले आउ नाही किछि करिवार साहाय्य कोठु आसीबो द आर्मी दे वर डिफीटेड तनु शाहनवाज खान गुरबख्श सिंह धिलन प्रेम कुमार सहगल ये माने थिले जो विशिष्ट नेता माने आ जानिच सुभाष बोस निजे से जो प्लेन से क्रैश हो जुआड़े जाऊ सी निखोज हो गले एमानकू इंग्रेज सरकार ताकर जो वरिष्ठ मिलिटरी कमांडर शाहनवाज खान प्रेम कुमार सहगल गुरबख्श सिंह धिलन एमाने सब बंदी हेले से माने बंदी हला परे से मानकू तापरे कोन करा गला ना सेकेंड वर्ल्ड वार सरी गला जापान डिफीट हला एमानकर ट्रायल आरंभ हला कहार ए जो इंडियन नेशनल आर्मी रो कमांडर आ सोल्जर मानकर एवं एई समय आम माने देखुछु कोन ना ए जो हला एमानक ट्रायल जेतबे आरंभ हला इट अराउज्ड ट्रेमेंडस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस तेणु से देवे कौन सारा भारत वर्ष जमी है ना एम भारत जमी जातीयतावादी चेतना समस्ते उद्बुद्ध हो गले माने जमी रक्षा करा जाऊ बहु बारिस्टर निजे निजे आगे आसिले आम केस लड़ू से माने देश अनेक घटना पे एगुड़िक आम गांधीयन मुवमेंट जो एमाने भी गोटे गोटे भारी बलिष्ठ अध्याय एमाने तुम जानी नथिबो बोध हुए जे 1946 रे रॉयल इंडियन नेवी रे हेइथिला कोन सेठी म्यूटिनी हेइथिला कोन हला ना भारत रेटिंग्स रे 78 टा शिप रे बॉम्बे कलिकता कराची मद्रास कोच्चिन विशाखापट्टना मंडपम अंडमान एठी समस्ते रिपोर्ट करथिले गोटे रीन म्यूटिनी ताको कहा जाय म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन ही तामने देख जे भारत रे विभिन्न स्तर रे अशांति जमिति चरम सीमारे पर्याय उपनीत हो सारथिला तेणु आमे माने देखुछु कोन ना आजाद हिंद फौज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज द हिंदू मुस्लिम यूनिटी मु तुमको कहिछि देख शाहनवाज खान मुसलमान प्रेम कुमार सहगल हिंदू गुरबख्श सिंह धिलन सिख सो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जोटा ब्रिटिश मानकर थिला जे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जे धर्म को टाणी आनिबे राजनीति को एंड दे विल डिस्ट्रॉय द यूनिटी of the Indians. So religion in politics, they wanted to mix up religion in politics. Azad Hind Fauj, its most important achievement was the Hindu-Muslim unity when there was deep communal division. By that time, India को partition हवा ऊपर को चली आसिलानी किंतु से माने Hindu-Muslim unity, they were propagator of Hindu-Muslim unity. एवं आउ कौन इतला ना unity of caste in the regional level. आउ गोटे बड़ा कथा हला it aroused tremendous influence on nationalism and a huge impact on the process of decolonization and nation making. भारत तो डीकोलोनाइजेशन माने औपनिवेशिक शासन अंत घटिबो 1947 अगस्त 15 रे औपनिवेशिक शासन अंत घटिबो एवं भारत राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र आत्मप्रकाश करिबो किंतु ए सब पाई नेताजी तांको क्यों माने डाकुथिले ए जो आजाद हिंद फौज रो जो सेना माने तांकर लीडर को सुभाष चंद्र बोस को स्नेहरे श्रद्धारे डाकुथिले नेताजी एवं he played a very major role in mobilizing
organizing the Indians in Southeast Asia under a nationalist banner. ଗୋଟେ nationalist banner ରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ when we come to the role of Azad Hind Fauj in the Indian national struggle, still then like a lamp it is burning, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଦୀପଟିଏ ଜଳି ଆଲୋକ ଦେଖାଏ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଶିଖା ପରି খুব ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଇ ମଧ୍ୟ it is showing the light of nationalism and national feelings। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ କଣ, the constitutional reforms, the Quit India movement and the Azad Hind Fauj, otherwise called as the Indian National Army। So role of Subhash Chandra Bose, the last Gandhian movement, the Quit India movement and the constitutional reforms 1935 এবং ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, as per the government of India at 1935 Orissa became a state। Orissa became a state in 1936 1st April, and also I have told you that along with Orissa ସେଇଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, that is called Sindh। ତେଣୁ with this ଆମେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ, its role in the Indian freedom struggle is a very very glorious and epoch making role। ଏବଂ ଏଇ ରୋଲଟା ପାଇଁ till today ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଏ ଜାତି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। The springing tide कहता कहते नारे कुहाजा। I must suggest you kindly see the picture Netaji Subhash, the forgotten hero। You will get a total idea, Second World War, international picture, national scenario, you can get a very good picture। So this much for this class। I must give you thanks that for giving me a patient hearing, and in tomorrow's class we will start with the popular struggle in the princely states। Thank you all।